Students, in previous module we have discussed about sewage treatment plant. You know, sewage is a harmful effect on environment and human health. For that, sewage is treated to convert it into harmless and safely disposed into water bodies. The place where process of treatment conducted is called sewage treatment or wastewater treatment plant. Wastewater treatment plant consists of three stages, that is primary, secondary and tertiary treatment. In primary treatment, there is a three stages: bar screening, grit removal and primary sedimentation tank. In bar screening, water is passed through a bar screen. The bar screen removes the large object like rag, stick, can, plastic packet from sewage, and then solid waste is collected and later disposed in landfill or incinerator. Then water further passed to grit and sand removal tank. Wastewater now pass through grit and sand removal tank. The speed of wastewater is released to allow sand, grit and pebbles to settle down. ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में क्या होता है, इनकमिंग जो वेस्ट वाटर है उसकी स्पीड स्लो डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से सैंड, ग्रिट एंड पेबल से वहाँ पे सेटल डाउन हो जाए. फर्दर वाटर इज पास through primary sedimentation tank. Water is allowed to stand for 10 to 12 hours. The suspended solid object या settle down is a primary sludge. जो suspended solid है वो settle down हो जाएगा further और उसको बोला जाएगा primary sludge. That primary sludge is removed with the help of scraper. फिर scraper के help से उसको remove किया जाता है and shifted to digester tank. In digester tank there is a anaerobic bacteria that decompose the organic matter and produce a biogas. What is anaerobic bacteria? The bacteria that decompose organic matter in absence of oxygen और फिर biogas में convert कर देते हैं. Further biogas used as a fuel and leftover sludge है उसको dry करके as a manure के form में use किया जाता है. The floating impurities like oil, grease are removed with the help of skimmer. और जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज है, फ्लोटिंग क्यों करेगा, बिकॉज उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ स्कीमर रिमूव करते हैं. एंड द वेस्ट वाटर आफ्टर रिमूवल ऑफ स्लज एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. फिर ये जो वाटर है जहाँ से विद द हेल्प ऑफ स्कीमर एंड स्कैपर की हेल्प से जो हमने एक्टिवेटेड स्लज है वो रिमूव कर दिया है एंड जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी है तो उसको बोला जाएगा क्लैरिफाइड वाटर. और फिर ये जो बायोगैस है उसको आप एज अ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट, वाटर इज पास थ्रू सेकेंडरी ट्रीटमेंट. Secondary treatment is designed to degrade the biological content of sewage in the form of waste, food waste, soap and detergent. Secondary treatment वैसे ही डिज़ाइन की जाती है जो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट है सीवेज में, लाइक ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, उसको डिग्रेड किया जाता है. There are two steps follow in secondary sedimentation tank, that is aeration and secondary sedimentation. The water passes through aeration tank where decomposed air is bubbled through water. Air is provide oxygen. These air provide oxygen to aerobic bacteria present in water. एरिएशन टैंक में कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड. कंप्रेस्ड एयर को बबल के फॉर्म में वाटर के जो एरिएशन टैंक है वो वाटर के साथ डाला जाता है, जिससे वहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स द बैक्टीरिया दैट इज डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिर उसको ऑक्सीजन मिलेगा और वो डिकम्पोज कर देगा ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, और उसको हार्मफुल में से हार्मलेस में कन्वर्ट कर देगा. The aerobic bacteria decompose organic substance like human waste, food waste and etc. Now, water move through secondary sedimentation tank where aerobic bacteria settle down is known as the activated sludge. फिर further water को move किया जाता है secondary sedimentation tank. In secondary sedimentation tank, there is allowed to stand there
वाटर को वहाँ पे 10 to 12 आवर्स के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है, जिससे जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द टैंक, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड sludge. So activated sludge is added back to the aeration tank to increase the population of aerobic bacteria. फिर वो जो एरिएशन जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, तब एरेशन टैंक में डालते हैं, जिससे जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए. और कुछ जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज है, उसको सेंड किया जाता है डाइजेस्टर टैंक में. द एक्टिवेटेड स्लज इज रिमूव्ड टू मूव टू डाइजेस्टर टैंक टू प्रोड्यूस अ बायोगैस. और फिर एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए. तो यहाँ पे कुछ एक्टिवेटेड स्लज में से बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं, और जो कुछ है उसको फर्दर सेकेंड प्रोसेस करते हैं, उसमें ऐड किया जाता है, जिससे एरोबिक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाए. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ सेकेंडरी ट्रीटमेंट. नाउ मूव टू अ टर्शरी ट्रीटमेंट. इन टर्शरी ट्रीटमेंट, treated water has a very low level of organic matter. अभी वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है बहुत कम होगा, एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत कम होगा. समटाइम्स इट में बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विथ केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन. फिर ये जो वाटर है उसको क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज. ठीक है, तो टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा, वाटर को क्लोरीन एंड ओजोन की हेल्प से ये केमिकल ट्रीटमेंट है, तो वाटर को क्लोरीन एंड ओजोन की हेल्प से ट्रीटेड किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, और फिर फर्दर उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट हम देखेंगे बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में.